that a prophet in the new covenant is supposed to give you a confirmation to what God has already spoken to you. So मैं ये बता रहा था कि नई वाचा के मुताबिक एक भविष्यद्वक्ता का काम है आपको वो उस बात को पक्का करना जो परमेश्वर आपको पहले से कह रहा है. Because in the old covenant there were only 3 offices that were anointed. That was the office of a prophet, priest and a king. क्योंकि पुराने नियम में, पुरानी वाचा में 3 ही दफ्तर रखे गए थे जो अभिषेक किए गए थे. वो एक भविष्यद्वक्ता का था, एक राजा का था और एक याजक का था. So if anybody wanted to know what God was saying, they needed to go to a priest and ask them. तो अगर कोई ये सुनना चाहता था कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है तो उनको भविष्यद्वक्ता के पास जाना पड़ता था क्योंकि वही दफ्तर रखा गया था. But not in the new covenant. लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है. In the new covenant, नई वाचा में every born again believer can hear God's voice. हर एक नया जन्म पाए हुआ विश्वासी परमेश्वर की आवाज सुन सकता है. Amen. No man of God can force you to do something which God is not telling you to do. कोई भी परमेश्वर का जन आपसे जबरदस्ती करके नहीं कह सकता कि परमेश्वर यूं कह रहा है यूं करो. जो परमेश्वर आपसे कह रहा है वो करो. That's why we all need to learn how to hear God's voice for ourselves. इसीलिए जरूरी है कि हम सब सीखें कि परमेश्वर की आवाज सुनते कैसे हैं. Not shortcut like this. शॉर्टकट लेकर नहीं, but it happens by sitting in His presence and calming and quieting yourself down. लेकिन ये होता है उसकी उपस्थिति में बैठकर अपने दिल को शांत करके. You can get any answer from God if you can learn to just sit in His presence. आप परमेश्वर से कोई भी जवाब सुन सकते हैं अगर केवल उसकी उपस्थिति में बैठना सीख गए तो. Amen. The Bible says, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things that you do not know. यिर्मयाह 33:3 वचन परमेश्वर ने कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और वो महान बातें तुझे बताऊंगा जो तू नहीं जानता. Any guidance that you're looking for? कोई भी निर्देश आपको अपनी जिंदगी के लिए चाहिए, sit in God's presence. प्रभु की उपस्थिति में बैठो. How many people are the sheep of Jesus? कितने लोग उसकी भेड़ हैं? यीशु मसीह की भेड़ हैं कितने लोग? Are you sure? Some people are not lifting their hands. कुछ लोग के हाथ नहीं उठ रहे. I don't know. Are you not sheep? If you're not sheep, then you're goat. अगर भेड़ नहीं है तो बकरी हो सकते हैं. You know, it's very easy to recognize who are goats. आसान है. बकरियों को पहचानना आसान होता है. You know how? पता है कैसे? They always saying, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मैं. You know, goats are always, yeah, anyway. बकरियां हमेशा मैं करती रहती हैं. If you are a sheep of Jesus, अगर आप यीशु की भेड़ हैं, then you have the ability to hear God's voice. तो ये जान लीजिए कि आपके पास क्षमता है उसकी आवाज को सुनने की. When a woman gets pregnant, when a wife gets pregnant, the seed from the husband brings the DNA of that person. जब एक स्त्री गर्भ धारित करती है तो वो उसके पति के स्वरूप में उस बच्चे की रचना होने लग जाती है. When the seed of the word of God was imparted in your spirit, along with the seed came the DNA of God. जब परमेश्वर के वचन का वो बीज आपके अंदर आया तो उस बीज के साथ साथ परमेश्वर के जैसी बनावट आपके अंदर आई. That's why I want to tell you, you are not ordinary people. इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग साधारण लोग नहीं हो. Yeah, we look like ordinary people. हम दिखने में साधारण हैं, but we are nothing like what we are seen from outside. लेकिन जो हम बाहर से दिखते हैं वैसे बिल्कुल. You are a brand new creation. आप एक बिल्कुल नई सृष्टि हैं. Amen. You are an ambassador with the engine of Lamborghini. आप वो एम्बेसडर हैं जिसका इंजन बदल दिया गया है, लैम्बोर्गिनी का इंजन डाल दिया गया है. Amen. We are a brand new creature. हम एक नई सृष्टि बना दिए गए. The Bible says that creation which has never existed before. बाइबल कह रही है वो सृष्टि जो पहले थी ही नहीं. So some people say, oh, grace of God, God will do it. No, God has already done it. प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह वो खुद करेगा. If you are waiting that God will do something, I can write it to you, it is not going to happen. अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी बात के होने का और आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर करेगा तो मैं लिख कर देता हूं कि वो नहीं होगी. Because God has already done it on the cross. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से जो करना था क्रूस पर कर दिया है. Amen. He has finished the work. उसने अपना काम खत्म कर दिया. Now we need to believe what he has already done and possess it by faith.
अब हमें उस बात पर को मान लेना है जो उसने कर दिया है और विश्वास से उसको पा लेना है। Amen. I'll read a scripture, Genesis 17 verses 5. उत्पत्ति 17 उसका 5। Genesis, book of Genesis chapter 17 verses 5. उत्पत्ति 17 उसका 5। No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. अब तेरा नाम अब्राम ना होगा लेकिन अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत देशों का पिता बनाया है। Right now, इस समय Isaac is not born. इसहाक का जन्म नहीं हुआ, But God already says that I have made you a father of many nations. जहां उसकी खुद की एक भी औलाद नहीं हुई, परमेश्वर अब्राहम से ये कह रहा है कि मैंने तुझे देशों का पिता बना दिया है। God changed his name before anything physical had happened. इससे पहले कि शारीरिक रूप से कुछ भी बदलता, परमेश्वर ने पहले से ही उसका नाम बदल दिया। Amen. And we have to understand, some people are like, oh, मैं गरीब हूँ. कुछ लोग ये कहते No, हैं we need to change the way you see yourselves. इसीलिए हमें समझना है, कुछ लोग कहते हैं कि वो गरीब है Oh, मैं बीमार हूँ. या वो कहते हैं कि वो बीमार है। They'll go to people and they'll say, I'm sick. वो लोगों के पास जाके बोलते हैं कि वो बीमार है। No, we have to change the way we see ourselves before it has already happened. And when you can see it before it has happened, you will see that it हमें इस happened. बात को बदल देना है, इससे पहले कि वो बात हमारे शारीरिक रूप में अपने आसपास नजर आए, हमें अपने मुंह के अंगीकार को बदल देना है। Amen. God told Israelites that I have given you, not that I will give you, I have given you the land which flows with milk and honey. परमेश्वर ने इजरायलियों से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें वो भूमि दूंगा, उसने कहा मैंने तुम्हें वो देश दे दिया है जो दूध और मधु की धारा है जहां बहती। Same way as Bible is saying that He has already blessed us with He has blessed us with every spiritual blessing. उसी तरह से परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने तुम्हें पहले से हर एक आशीष से, आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। Guys, I hope you are getting what I'm मैं saying. उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। Even though God had given them that land, हालांकि परमेश्वर ने वो देश उनको दे दिया था, but because of their unbelief, लेकिन अपने अविश्वास के कारण they were not able to possess it. वो उस पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। Grace has freely provided everything. Faith helps us to possess it. अनुग्रह आजादी से मुफ्त में सब कुछ दे तो देता है, लेकिन विश्वास है जिसके द्वारा हम उस सब को अपने जिंदगी में हासिल कर पाते हैं। That's what people don't understand. Prayer is not magic. They think I'll pray and then मेरी लैप में आके गिरेगा। यही है जो बहुत लोग नहीं समझते। उनको लगता है कि प्रार्थना जादू की तरह, के मैंने प्रार्थना की अब कुछ गोद में आके गिर जाएगा। No, it will not. ऐसा नहीं होता। You will have to possess it. आपको उस पे कब्जा करना The पड़ेगा। healing that you're looking for, you have to possess जो it. चंगाई आपको अपने शरीर में चाहिए, आपको उस पे कब्जा करना The पड़ेगा। business that you want to start, you have to possess it by faith. जो व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, आपको उस पे कब्जा करना पड़ेगा विश्वास से। The son that you want to come out of that sickness, you have to possess their healing. आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बीमारी से बाहर आ जाए, आपको उस स्वास्थ्य पे कब्जा करना पड़ेगा। God will do it, won't help you. परमेश्वर करेगा, से कोई फायदा नहीं You होगा। have to start saying God has already done it for me, and you have to start declaring it by faith. आपको ये कहना शुरू करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से कर दिया है, और इस बात की घोषणा करना पड़ेगा। God didn't change Abram's name when he was blessed with a baby. God already changed his name before there was anything. जब अब्राहम के बेटा पैदा हो गया, तब परमेश्वर ने उसका नाम नहीं बदला। परमेश्वर ने उसका नाम तब बदला जब उसका कोई बच्चा नहीं था। Amen. And even though God wanted to give them that land, 10 people who gave bad report and all the people believed bad report, God was not able to do that. और हालांकि परमेश्वर उनको वो देश देना चाहता था, लेकिन 10 लोग बुरी खबर लेकर के आए और सब लोगों ने वो बुरी खबर को मान लिया, और वो सब लोग के कारण परमेश्वर उनको वहां नहीं ले जा पाया। Amen. And the calling has not changed. और वो बुलाहट आज भी बदली नहीं। I said the calling has not मैं changed. कह रहा हूँ बुलाहट आज भी नहीं बदली है। For each one of you, the calling is that God wants to make you a blessing. और मैं जानता हूँ आप से हर एक के लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो आपको आशीष बनाए दूसरों के लिए। Amen. He wants to bless you first, वो so पहले- that you can be a blessing to nations. वो पहले आपको आशीष बनाना चाहता है ताकि आप देशों के लिए आशीष बने। Amen.